So topic Albert Einstein at school and lesson 6. Let us be in continuity. How we were doing this particular line. Be ready for line by line explanation. So consider your moral responsibility to note down every difficult meaning. It is your moral responsibility, students. So let us start enthusiastically. If we look at pinpoint, the pinpoint for today is Yuri was just highlighting the point that he could be able to arrange doctor who can arrange fictitious certificate for Albert Einstein. At that moment, Albert Einstein became very happy. So now just look at the same page 28, dear students. Now wait a moment, I haven't found yet. While Albert Einstein became very happy to listen that particular point that Yuri will arrange teacher for him, doctor for him, he became very happy. But at that moment, Yuri had commented in a very different order. क्या कमेंट किया यूरी ने? जस्ट लुक एट, कहते यार अभी इतना खुश क्यों हो रहा है? अभी मैंने सर्च आउट थोड़ी किया है डॉक्टर जो कि तुझे मेडिकल सर्टिफिकेट दे देगा स्कूल से क्विट करने के लिए. यानी ही वांटेड fictitious medical certificate. If we look at the previous lecture, we are able to look at crystal clear pic of that. Now look at the next. Oh, but you will. You have to look at this particular point here. Albert Einstein is enthusiastic. He was 100% sure that Yuri will surely arrange doctor for medical certificate. तो यहाँ पे कहते हैं कि हाँ मुझे श्योरिटी है, सर्टेनिटी है, 100% श्योरिटी है कि आप अरेंज कर दोगे. सो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर. अगेन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, बेटे डोंट इग्नोर इट. तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में होता है एल्बर्ट आइंस्टाइन. सो दैट इज व्हाई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज देयर. So now just look at the next. And if I do, I don't know if he will be willing to help you. Now just look at Yuri's dialogue. He wanted to highlight that point that even if he would be able to arrange the doctor, he could never be able to give surety that that doctor would just give medical certificate. यहाँ पे बेटे यूरी हाईलाइट करना चाहता है ये पॉइंट कि अगर मैं किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को इंस्ट्रक्ट कर भी दूं तो आपसे मिलवा भी दूं तो ये जरूरी नहीं है कि वो हेल्प का मतलब यहाँ पे कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट दे. All the doctors are never able to produce fictitious medical certificates. I think crystal clear. He will, declared Albert. Albert was making declaration with 100% surety. He was saying he will. कि यानी हाईलाइट करना चाह रहा है कि यूरी जी आप जो भी डॉक्टर अरेंज करोगे श्योरली बी एबल टू गिव मेडिकल सर्टिफिकेट. आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट इजियर फॉर हिम. He laughed merrily. Oh, just look at the enthusiasm of Albert Einstein here. No, just listen. Just making the declaration. Declaration होता announcement. With 100% surety कि हाँ वो डॉक्टर जरूर मेडिकल सर्टिफिकेट देगा. और साथ में ऐड कर रहा है इसी पॉइंट में कि he was going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. तो कहते वो एक्चुअल सेंस ऑफ टर्म में नर्वस ब्रेकडाउन जो है उस कंडीशन पे पहुंच जाएगा. आई थिंक आई हैव गिवन or highlighted the meaning of nervous breakdown in a very, I think, shortened form. You must have studied detail or noted down, dear students, in a proper order. क्या होता है nervous breakdown? You have to look at. But it is mental illness. मैंने सिर्फ इतना ही पॉइंट बताया था कि जिससे मेंटल लेवल पुअर हो जाता है, यानी वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट वे से नहीं होता.
तो क्यों होता है ये मेंटल इलनेस? यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू सीवियर डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी। यानी आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर कि नर्वस ब्रेकडाउन क्या होता है, कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी होता है, चिंता में होता है, तो टेम्परेरी लेवल से उसका जो ब्रेन का लेवल होता है वो कम करना बंद कर देता है, वो प्रॉपर वे से फंक्शन नहीं करता। आई थिंक और क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी कह रहे हैं कि मैं तो सच्ची में उस कंडीशन तक पहुंच जाऊंगा, यानी ही वांटेड टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट वी एबल टू लुक एट दैट पर्टिकुलर इलनेस, मेंटल इलनेस। यानी कि मजाक कर रहा है यहाँ पे, तो ये फनी वे से बात कर रहा है। यानी ही वाज टॉकिंग टू हिज कजन यूरी, तो कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, तो उस बात की चिंता ना कर, मैं सच्ची में इस जो ट्रबल है, डिप्रेशन है, उसको आई वुड बिकम द रियल सफरर ऑफ दिस नर्वस ब्रेकडाउन। यानी मजाक कर रहा है, रियलिटी में नहीं बोल रहा वो, टू मेक इट इजियर फॉर हिम, ताकि डॉक्टर के लिए बहुत इजी हो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना और उसको इश्यू करना। He laughed merrily. I already told you that he was in funny mood while he was highlighting that particular point. So that is why he had laughed merrily. If we look at the meaning of the word merrily, happily, I think crystal clear so far as this particular paragraph is concerned. There is no doubt in that. Now just look at the next. If we look at the next point of the same, you will have to look at uh, this. I think point is very fine. You have to look at the remark of Yuri here. I have never seen you looking less nervous, remarked Yuri. Yuri, his cousin, was highlighting that particular point in a very confident way. कि यार मैंने तेरे को कभी देखा तो नहीं कि तू टेम्परेरी लेवल पे स्ट्रेस के कारण जो काम करना है वो कर ना पाए। यानी कि मैंने तेरे को ये प्रॉब्लम में सफर करते हुए कभी नहीं देखा, क्योंकि उनका आपस में मीटिंग होती रहती थी। तो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. Was able to highlight this particular point. Just listen, Albert Einstein. कैसे एश्योरेंस से बोल रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन जी? कहते यार एक काम कर, तू जो मेरे स्कूल में 1 या 2 दिन अटेंड कर, तो यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट रियली वाज बिग सफरर ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन। यानी वो हाईलाइट करना चाहता है कि तू 1-2 दिन ऐसा कर, मेरे स्कूल में आके चेक कर कि जब मैं स्कूल में होता हूँ तो मेरी हालत कैसे होती है। बिकॉज ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड एट स्कूल, was never satisfied to look at the system of education in German school. That was the basic problem with him. No doubt he was a very intelligent brain, was a brainy fellow. But the reason behind, I think you are crystal clear, he never want to look at cramming. और प्रैक्टिकल बेस पे एडुकेशन लेना चाहता था, तो उसको आई थिंक ही यूज्ड टू फील इरिटेटेड एट स्कूल, दैट वाज द बेसिक रीजन। तो कहते यार तू 1-2 दिन तुम मेरे साथ ना स्कूल चल, तो पता चल जाएगा, मेरा स्कूल अटेंड करके देख लियो, तुझे पता चल जाएगा कि नर्वस ब्रेकडाउन से मैं सफर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. So now just look at the basic point. सर्टनली वर्ड क्यों यूज किया जाता है बेटा जब हम 100% श्योरिटी से कुछ बोल रहे होते हैं? He had lost his high spirits. While you have to look at this particular point when Yuri saw him next. High spirits का क्या मीनिंग होता है? Just note it down dear students. बेटा हाई स्पिरिट्स होता है जब इंथुजियास्टिक होता है इंसान, the person is ever ready to look at his assignment with 100% confidence and enthusiasm. तो जब नेक्स्ट टाइम वो देखता है किसको, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, यूरी, तो उसकी जो इंथुजियाज्म था काम करने का, असाइनमेंट करने का, बिल्कुल खत्म हो चुका था। I think crystal clear up to this particular point. There is no doubt in that. Now next, I can't stand it any longer, he said.
I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. Now, just look at this particular point. Don't get confused with the words because you will have to look at uh, very tough vocabulary. Just note down the meaning of these words. जो ये phrase है, you have to look at the meaning first. तो I can't stand it any longer. तो किस लिए यूज होता है बेटे? हाईलाइट करने के लिए कि now he could never ever be able to tolerate that particular situation. यहाँ पे ये नहीं है इसका मीनिंग कि वो खड़ा नहीं हो सकता था या कुछ नहीं था. यू विल हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. उसने कहा कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि मैं और वेट नहीं कर सकता इस पॉइंट को, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट लेके इस स्कूल को क्विट करने के लिए. आई थिंक क्रिस्टल क्लियर. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. तो नाउ जस्ट लुक एट क्या उसने ऐड किया उसी पॉइंट में. I did in a very sincere way. कि I really shall have a nervous breakdown. कहते सच्ची में मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर मैं ज्यादा कंटिन्यूटी में यहाँ रहा. Then every doctor would be able to declare that. I think crystal clear up to this particular point. यहाँ पे वो बहुत अपसेट हो चुका है, तो तभी कह रहा है कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा. यानी क्या बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? कि मैं कंटिन्यूटी में उस स्कूल में पढ़ूं, क्योंकि वो छोड़ना चाहता था, स्कूल को क्विट करना चाहता था. तो ऑलरेडी आई थिंक रीजंस यू हैव स्टडीड इन द लेक्चर. तो उसने कहा कि आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर. कहते सच्ची में मुझे हो जाएगा क्या नर्वस ब्रेकडाउन. नर्वस ब्रेकडाउन का मीनिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. जब मेंटल इलनेस होती है ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेन और टेंशन, यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. कहते फिर तो हर डॉक्टर सेटिस्फैक्टरली कहेगा कि हाँ यस इज अ बिग सफरर ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन. कीप इट अप देन सेड यूरी, आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू. कहते फिर बेटा तो ऐसा कर, जो तू ड्रामा करना चाहता है ना कंटिन्यूटी में कर. You should be dramatic enough to highlight that you are the real sufferer of nervous breakdown. Said Yuri, I found a doctor for you. तो उसने क्या हाईलाइट किया मैसेज आइंस्टाइन को? He wanted to highlight the message that he had searched out a doctor for him. किस लिए डॉक्टर सर्च आउट करना था? आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर. फॉर जस्ट गेटिंग मेडिकल सर्टिफिकेट. तो यहाँ पे अफर्मेटिव में डिक्लेरेशन कर रहे हैं यूरी जी कि यार जो तू ड्रामेटिक शो करना चाहता है, क्योंकि डॉक्टर भी कोई ऐसे नहीं देगा जब तक वो सिम्टम्स नहीं देखेगा. जब तक वो इस डिजीज जो तू कह रहा है ना उसके सिम्टम्स नहीं देखेगा, तो नो डॉक्टर विल बी एबल टू जस्ट इश्यू सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट. तो कह रहे यार जो तू ड्रामेटिक शो कर रहा है ना करता रहा, बी इन कॉन्टिन्यूटी, कीप इट अप. क्यों बोलते हैं कि हाँ यू शुड बी इन कॉन्टिन्यूटी विद द थिंग्स. आई थिंक क्रिस्टल क्लियर. जैसे किसी की फर्स्ट पोजीशन होती है, हम कहते हैं ना कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, कीप इट अप. कीप इट अप होता है कि जस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड्स, कीप द फ्लैग फ्लाइंग. आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर. Look at the next. You have. Albert's face lit up. Oh, good. When can I see him? Now just look at enthusiasm level or delight of Albert Einstein when he just listened the point that Yuri had arranged a doctor. तो कहते you have, just look at sign of interrogation. तो ये नहीं कि वो क्वेरी कर रहा है, वैसे तो देखिए कोई इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हैव यू नहीं है, यू हैव यानी क्वेश्चन के टाइप में वो पूछ रहा है अफर्मेटिव को भी कि कर लिया सच्ची में. कई बार हम भी जब हम डिस्कशन करते हैं तो समटाइम्स वी लुक एट अफर्मेटिव इन इंटेरोगेटिव फॉर्म. आई थिंक क्लियर. Albert's face lit up. Face lit up. You have to look at the meaning of it. बेटा फेस lit up क्या होता है? ये होता है कि when the person becomes extremely happy. जब कोई इंसान extremely happy हो जाता है, खुश हो जाता है, delighted हो जाता है, you are able to use this. So I think crystal clear up to this particular point. There is no doubt in this. You are very clear about
number of tough words or phrases. Now, next step you will have to look at Albert's face lit up. यानी कि Albert became extremely happy. Oh, good. When can I see him? So now he was just making a real inquiry. क्या इंटेरोगेटिव में पूछ रहे हैं एल्बर्ट जी? कहते बहुत अच्छी बात है अगर आपने डॉक्टर अरेंज कर लिया यूरी जी. When can I see him? कि मैं कब मिल सकता हूं? सी का मतलब देखना नहीं होता बेटा. सी का मतलब मिलना. देखना भी होता है. It depends upon that I think text. We are able to recognize the meaning of any word from the text itself. Because single word is with sometimes 5 meanings, 7 meanings. You must consult thesaurus. You should be able to recognize the fact. See me, see him. यानी इसका मतलब होता है मिलना. When can I see him? I was just making a real inquiry here. कि यार एक बात बता मैं कब मिलूं उसको. कब का तूने अपॉइंटमेंट फिक्स किया है उसके साथ मेरा. Just listen the point. I think crystal clear. There is no doubt in that. I have an appointment for you for tomorrow evening, Yuri said. Here is the address. Now just look at the reply of Yuri. He had highlighted that particular point that he had fixed an appointment for him. Yani for him means for Albert Einstein for tomorrow. Tomorrow means the next day. Yani ki the next evening. Evening you are able to recognize. तो यहाँ पे यूरी हाईलाइट कर रहा है इस पॉइंट का कि यार मैंने अपॉइंटमेंट ऑलरेडी फिक्स कर लिया है कल शाम को. Here is the address. He had just given him address of that doctor. कहते हैं ये ले एड्रेस. तो अपॉइंटमेंट ऑलरेडी फिक्स्ड है. I think crystal clear up to this particular point. You are very clear about each and every meaning because vocabulary of this particular chapter is very tough and you will have to recognize each and every word in a very sincere way. Now, next you have to look at he handed Albert a piece of paper. Now, just look at he here means Yuri, his cousin. Handed मतलब देना. Albert a piece of paper. उसने एक छोटा सा पेपर का पीस दिया यानी जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था. पहले जमाने में कोई सेल फोन्स नहीं होते थे लोगों के पास. तो जब भी वो डायरी में एड्रेस नोट करते थे या कोई अब किसी को देना होता था रेडीमेड पड़ा होता था तो स्लिप में लिख के देते थे. सो दैट इज व्हाई ही हैड हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर. क्या क्यों दिया था? उसमें एड्रेस लिखा हुआ था डॉक्टर का. आई थिंक क्रिस्टल क्लियर. देयर इज नो डाउट इन दैट. डॉक्टर अर्नस्ट व्हील. Is he a specialist in nervous troubles? Asked Albert. Just look at the inquiry of Albert here. He was able to read the name of the doctor. The name of the doctor was Dr. Ernst Wheel. Now he had made the inquiry, very specific or very real inquiry. He wanted to inquire that was he a neurologist? न्यूरोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? यानी अगर मैं न्यूरोलॉजी की इंटरप्रिटेशन दूं, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम. ये ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की जो डील करती है जब नेगेटिविटी होती है, डिसऑर्डर होते हैं नर्वस सिस्टम के. और न्यूरोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? द डॉक्टर हु डील्स इन दिस पर्टिकुलर डिजीज, जो ट्रीटमेंट करता है इस डिजीज का. I think crystal clear up to this particular point. यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी बहुत रियल क्वेरी कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं कि वो स्पेशलिस्ट है क्या न्यूरोलॉजिस्ट है? आई थिंक क्रिस्टल क्लियर. नर्व्स ट्रबल्स को जो हैंडल करता है, जो उसका ट्रीटमेंट करता है, उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है बेटा. आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर. तो नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. You may even be his first patient. Now just look at the reply of Yuri.
कहते नहीं यार नहीं, कि वो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, ही वांटेड टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कि स्पेशलिस्ट नहीं है नर्वस ट्रबल्स के लिए। आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर। यूरी ने एडमिट किया। एडमिट क्या होता है? जब हम कन्फेस करते हैं किसी बात, किस पॉइंट को कन्फेस करते हैं, मानते हैं। तो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर डिक्लेयर्ड दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट ही वाज नॉट, यानी कि डॉक्टर अर्नस्ट व्हील वाज नॉट a neurologist. Neurologist, I think you are crystal clear. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. So he added to that particular point in a very systematic way. उसने इंट्रो दिया, ब्रीफ इंट्रो डॉक्टर का दिया, उसकी क्वालिफिकेशन का, यानी कि उसने कहते कि अभी अभी क्वालिफिकेशन लिया है, अभी अभी उसने डिग्री ली है लास्ट वीक, यानी लास्ट वीक उसका जो डिग्री था पूरा हुआ है, एमबीबीएस। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। You may even be his first patient. Again, sign of exclamation. Became very excited. He was while he was telling that particular point. जब genuine वे से कोई point बताते हैं, तब भी हमें sign of exclamation लगाना पड़ता है। Sudden feeling जो हमारे मन में जो उठती है, कोई भी हो, तो कहते हैं हो सकता है कि तुम उसके पहले ही पेशेंट हो, क्योंकि लास्ट वीक उसने अपनी डिग्री जो है पूरी की है उस डॉक्टर ने। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन इंटेरोगेशन। तो यहाँ पे यू हैव टू लुक एट दिस डायलॉग, इट्स जस्ट हाईलाइटेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट पूछ रहे हैं यूरी से कि यार फिर तो तू उसको जानता होगा जब वो स्टूडेंट था तब से, कि यानी दोनों आपस में अच्छे तरीके से जानते होंगे। I think crystal clear about this particular dialogue of Einstein. You knew him as a student then, again interrogation. Affirmative in interrogative. I think crystal clear. तो क्योंकि वो क्वेरी कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है कि तू तब काफी दिन से जानता होगा उस डॉक्टर को, कि अभी लास्ट वीक उसने डिग्री पूरी किया है और अभी तो मुझे रिकमेंड कर रहा है कि उसी से मेडिकल सर्टिफिकेट लो। तो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। नाउ लुक एट द रिप्लाई ऑफ Yuri here. You have to look at reply of Yuri. I've known Ernest for years. Yuri hesitated for a few moments. He's not a fool. He warned Albert. Now just look at this particular point. He had replied Einstein's query in a very systematic way. क्या उसने रिप्लाई किया? उसने कहा कि यार उसको मैं काफी सालों से जानता हूँ, बहुत दिनों से मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ। इयर्स होते हैं बहुत सालों से, जो पर्सन हमें बहुत दिनों से जानता होता है। कहते अर्नेस्ट को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। यूरी हेसिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ क्षण, मोमेंट होता है पॉइंट ऑफ टाइम, अ फ्यू, सम मोमेंट्स, यानी कुछ क्षण के लिए यूरी जो था हेजिटेशन यानी फील किया। हेजिटेशन मतलब कुछ बोलने जा रहा था। कई बार हम अपने फ्रेंड से, अपने कजन से कुछ रियलिटी बोलने जाते हैं, बोलना चाहते हैं, तो हम थोड़ा हेजिटेटेड फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूरी हेजिटेटेड फील क्यों कर रहा है? क्योंकि ये रियल पॉइंट बताना चाह रहा है। क्या रियल पॉइंट बताना चाह रहा है? यानी वो कहना चाह रहा है कि जब तुम डॉक्टर के साथ बात करे, बी केयरफुल, बी जेन्युइन। वो हाईलाइट करना चाहता है कि ये जो डॉक्टर है कोई फुलिश डॉक्टर नहीं है। I think crystal clear. Now you will have to look at the meaning of this particular dialogue again. तो यहाँ पे क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं? हेजिटेशन किस बात की फील किया? आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि कड़वा सच बताना जा रहा था। जब हम अपने फ्रेंड्स को, अपने नोन को कोई कड़वा सच बताने जाते हैं, कई बार हमारी हेजिटेशन फील होती है हमें। तो वो हाईलाइट कर रहा है बड़े स्ट्रॉन्ग वे से, हेजिटेशन फील करने के बाद कहते कि यार वो मूर्ख नहीं है, वो जो डॉक्टर है। ही वार्नड एल्बर्ट, उसने वार्निंग दी एल्बर्ट आइंस्टाइन को कि दैट डॉक्टर इज नॉट अ फुलिश डॉक्टर। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। फूल कहते हैं मूर्ख को।
I think you are able to get the interpretation of fool or foolish in a systematic manner. Look at the query of Einstein. What do you mean? तो यहाँ पे आइंस्टाइन कहता है क्या मतलब है तेरा यार, क्या कहना चाहता है यूरी, बोल. Now just look at the next. Don't try to pull the wool over his eyes. That's all. Be frank with him, but don't pretend you have got what you haven't. Not that you would deceive anyone. Yuri added, you are the world's worst liar. Now just look at this paragraph. तो यहाँ वार्न कर रहा है, वार्निंग दे रहा है यूरी किसको, आइंस्टाइन को. Now just note down the meaning of this phrase, to pull the wool over one's eyes. तो इसका मीनिंग बेटे क्या होता है, you have to write, जब हम किसी को चीट करते हैं, डिसीव करते हैं, डिसीट करते हैं, तो टू चीट, जस्ट राइट डाउन द मीनिंग. तो मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज इज टू चीट. आई थिंक to pull the wool over one's eyes means to cheat, to play with somebody, to deceive, you can write any. धोखा देना किसी को. I think crystal clear up to this particular point. यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं यूरी जी कि यार तू धोखा देने की कोशिश मत करियो डॉक्टर को. That's all. क्योंकि मूर्ख डॉक्टर नहीं है कि तेरी बातों में वो आ जाए. बी फ्रैंक विद हिम. बी फ्रैंक का मतलब क्या होता है कि जब बंदा क्लियरली बोलता है किसी चीज को, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, कहते हैं फ्रैंकली बात करियो. फ्रैंकली मतलब ये नहीं कि खुल के बात करियो, हंसना गाना शुरू कर दियो. नो, फ्रैंक का मतलब रियलिटी बताइयो इन अ प्रॉपर वे विदाउट एनी हेजिटेशन. पर एक बात ख्याल रखियो, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट. वो बहाना ना बनाइयो कि जो तुझे डिसीज है नहीं तो उसको हाईलाइट कर दे. इस बात का ख्याल रखियो. यू हैव टू लुक एट दिस. प्रिटेंड क्या होता है, जो हमें जो सच होता है, जब हम सच को छुपाकर झूठा बहाना बनाते हैं. तो वी हैव टू लुक एट दिस. कहते तो सच को छुपा के कोई झूठा बहाना ना बनाइए. जो तेरे को डिजीज है नहीं उसको हाईलाइट मत करियो. बी जेन्युइन. जो भी कहना चाहता है, यू शुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ट्रू, वेरी वेरी सिंसियर. नॉट दैट यू विल डिसीव एनीवन. कहते मैं इसलिए नहीं कह रहा यार कि तू किसी को धोखा देगा. He wanted to highlight this particular point. You read it. You're the world's worst liar. कहते अगर मैं यार तेरी आइंस्टाइन इंटरप्रिटेशन दूं, अगर तेरी एक्सप्लेनेशन करूं, तेरे पर्सनल पॉइंट को बताऊं, तू तो दुनिया का सबसे नेगेटिव टाइप का लायर है. लायर होता है झूठ बोलने वाला. यानी कि यू हैव टू लुक एट, वो हाईलाइट करना चाहता है कि तुझे तो झूठ बोलना आता ही नहीं है. वर्ड्स वर्स्ट लायर किसको कहते हैं? यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर सुपरलेटिव डिग्री. बैड, वर्स, वर्स्ट, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. तो वर्स्ट लायर क्या होता है? जिसको झूठ बोलना आता ही नहीं. कहते तो दुनिया का ऐसा इंसान है जिसको झूठ बोलना आता ही नहीं. I think he wanted to highlight that particular point. उसकी क्वालिटी, उसका कैरेक्टर ट्रेट भी साथ में हाईलाइट कर रहा है. तो I don't know whether he was just highlighting this particular point in reality or he was just looking at this particular statement for upgrading his sincerity level. कि जब वो डॉक्टर से बात करे तो किस तरीके से करे. I think crystal clear, there's no doubt in that. Albert spent the day wondering what to tell the doctor. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. Now, just look at this particular point. Albert spent the day, yani ki the next day, wondering what to tell the doctor. He had spent next 24 hours. तो पूरे 24 आवर्स उसने प्रेपरेशन की कि डॉक्टर से कैसे बात करेगा. यू विल हैव टू लुक एट दिस सेंटेंस.
तो एक दिन उसने यानी कि जो अगला दिन था उसने पूरा स्पेंड किया, यानी कि यू हैव टू इवनिंग में उसकी अपॉइंटमेंट थी ना, तो यू स्पेंड इंटायर डे टू लुक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, to look at the base of what he should talk to that particular doctor. हम कई बार स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना कि उससे ऐसे बात करनी है, इट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, यानी कि जो नेक्स्ट डे जो अपॉइंटमेंट थी पूरा दिन वो उसी में बिजी रहा, क्योंकि प्रीवियस इवनिंग ही वाज एबल टू गेट द मैसेज फ्रॉम यूरी कि कल तेरी बेटे अपॉइंटमेंट है कहाँ पे, यानी इवनिंग में टाइम भी उसने बताया। तो उसने पूरा दिन लगा दिया उसकी प्रेपरेशन में कि हाँ मैं डॉक्टर से ऐसे बात करूंगा, लेकिन क्या हुआ, जस्ट लुक एट the reality. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. लेकिन जब अपॉइंटमेंट का रियल टाइम आया, जब नेक्स्ट इवनिंग जब अपॉइंटमेंट थी, he was confused. तो उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या बात करे डॉक्टर से, जितनी प्रेपरेशन की थी सारी उसको भूल गई, उसको कुछ भी याद नहीं रहा, because he had become confused at that particular moment. It was it's so much that he really was quite nervous, और इतना कंफ्यूज हो गया डॉक्टर की मीटिंग से पहले, डॉक्टर से मिलने से पहले, कि सच्ची में ही उसको नर्वस ब्रेकडाउन ऐसा लग रहा था कि हो चुका, became very nervous. The reason I have already told you, he was in confusion. कि बेटे जब भी हम कुछ झूठ बोलते हैं तो उसके लिए कंफ्यूजन तो होता ही है, क्योंकि रियली ही वाज नॉट अ सफरर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज, सो कोई स्ट्रेस नहीं था, स्ट्रेन नहीं था, वो तो बस एजुकेशन सिस्टम खुद उसको पसंद नहीं था, तो वो स्कूल छोड़ने के लिए वो एक्सक्यूज बना रहा था, इट वाज लेम एक्सक्यूज, सो दैट इज व्हाई ही वाज कंफ्यूज्ड। किसी भी झूठ को बोलने से पहले हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। सच हमेशा सच होता है, कितनी बार भी बोलोगे और हमेशा याद रहेगा, और झूठ को बोलने के लिए आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, यार मैं उस टाइम क्या बोला था, और यहाँ पे कंफ्यूजन का कारण ही यही है कि was not going to tell the reality, was not sharing the real problem. Now just look at the next page 29. Dear students, be ready. I don't